Bismillahirrahmanirrahim. Here is Dr. Naila Khalid. We will learn about one of the colligative property, that is freezing point depression, in this session. So, depression of freezing point of solution is one of the colligative property. So this is lecture number 7, and we will learn about how the pure solvent has higher freezing point as compared to the solution, its solution. No matter what type of solute is present in it, it depends only its concentration. So on the basis of this concentration, the depression in freezing point has been observed. Means the freezing point of the solution will be lower than the freezing point of the pure solvent. So that is why this is called colligative property. So this is also known as cryoscopy. We will discuss and we will learn today depression in freezing point of the solution as colligative property. जैसे कि आप जानते हैं colligative property solutions की वो physical property है जो depend करती है concentration of solute पे, उसकी identity और chemical nature से independent होती है. लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये वो टेम्परेचर होता है एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. These liquid and solid phases, these are in equilibrium with each other. When solid is converted into liquid, this is called melting, and when liquid is converted into solid, then this is called freezing. The temperature at which both phases are in equilibrium at the same pressure, then this is called freezing point. Freezing point of water is 0 degree centigrade. Pure water is 0 degree centigrade. But if you add some salt in it, then its freezing point will be lower than 0 degree centigrade. This is what the depression in freezing point is. And freezing point depression means a change in freezing point is represented as delta T. I is the want-off factor, Kf is the freezing point constant, जिसको हम मोलर freezing point depression constant भी कह सकते हैं. And small m represent the molality, the concentration of the solution. How much the amount of solute is present, it will change the freezing point from the pure solvent. So pure solvent or pure water has boiling freezing point higher as compared to the freezing point of the solution. This can also be explained by this temperature pressure curve. As you know that temperature and vapor pressure curve, this is for solution and this is for pure solvent. So you can say that a pure solvent will freeze at this temperature, higher temperature, and a solution will freeze at lower temperature. So this is depression of freezing point, यानी उसमें कमी हो जाती है. Solution का जो freezing point होता है वो हमेशा pure solvent के freezing point से कम होता है. This is called freezing point depression, or it is also known as colligative property, one of the colligative property, क्योंकि ये उसकी concentration पे dependent है. इसको दूसरे अंदाज में हम इसी इक्वेशन को यूं ही लिख सकते हैं कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, वेयर एम इज द मोलर कंसंट्रेशन. ये मोलर कंसंट्रेशन है. क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये डिप्रेस इसलिए होता है कि जब आप सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उससे जो सॉल्यूट है वो उसके साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेता है, और उसके बाद जो है इंटरेक्शन डेवलप कर लेता है, और सॉल्ट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को आइस क्रिस्टल्स बनाने में रुकावट का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से आपको मजीद इसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है. इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. ये एक न्यूमेरिकल है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये सॉल्वेंट है, वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है.
लेकिन जब इसका सोल्यूशन बनाया गया, एक अननोन सॉल्यूट 0.558 ग्राम जो है वो उसमें ऐड किया गया 33.5 ग्राम साइक्लोहेक्सेन में। ये सॉल्वेंट है और एक अननोन सॉल्यूट उसके इतने ग्राम ऐड करके उसका सोल्यूशन बनाया गया। तो फिर ये ऑब्जर्व किया गया कि फ्रीजिंग पॉइंट 6.5 की बजाय 4.32 हो गया, डिप्रेशन हुई, उसमें कमी आ गई। तो आपने मालूम करना है, कैलकुलेट क्या करना है आपने, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, जबकि के एफ फॉर साइक्लोहेक्सेन जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप इस सारे डेटा को इस तरह जो है वो लिख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन 6.5 है, जबकि सोल्यूशन का 4.32 है, तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी हो जाएगा। मैस ऑफ सॉल्यूट 0.558 ग्राम है और mass of solvent 33.5 ग्राम है. What you have to find, that is the unknown solute, molar mass of the unknown solute. Here is the solution. Delta TF is the difference, that is 2.18 degree centigrade. KF is 20 degree centigrade. You know the KF, you know that delta TF, I is the want of factor, that is 1. So putting these values, you can calculate the molality of this solution, that is 0.109 mole per kilogram, as the number of moles is equal to m into kilogram of solvent. Kilogram of solvent is already given 0.0335 gram and 0.109 gram is the molality. So you can calculate the number of moles. From number of moles and weight of the given solute, unknown solute, you can calculate the molar mass of the solute. So this is another example. Ethylene glycol, जिसका ये फॉर्मूला है, एक नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूट है जो कि डिसॉल्व किया गया पानी में। ये जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं और कार रेडिएटर्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। What is the freezing point of an aqueous solution? That is 52% by mass of ethylene glycol. तो इसके ये 52% by mass solution बनाया गया और ये मालूम करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इस एक्वस सोल्यूशन का जो कि 52% है वो कितना कम हुआ है, जबकि आप जानते हैं प्योर वाटर 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, चूंकि फॉर्मूला गिवन है इसी से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 62.068। मैस ऑफ सॉल्यूट 52 ग्राम, टोटल 52 ग्राम है, चूंकि 52% है तो इसीलिए 100 में से 52 माइनस करें तो 48 ग्राम, तो इसका मतलब है सॉल्वेंट 48 ग्राम है। तो इस तरह आप मोलैलिटी पहले मालूम करेंगे, आपको ये सारी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ये मालूम है तो आप इससे मोलैलिटी मालूम कर सकते हैं। पहले मोलैलिटी मालूम करें, फिर उस इक्वेशन में मोलैलिटी की वैल्यू और जो उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी ऐड करें और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये मोलैलिटी मालूम की है हमने इसमें, ये मोलैलिटी ठीक है, दैट इज 1.75 मोलर। और इसमें हमने ये देखें ये वैल्यूज पुट की हैं मोलैलिटी के लिए, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, इसी से हमने मोलैलिटी कैलकुलेट की है। और फिर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, एम की वैल्यू तो आपको पता है, मोलैलिटी हमने कैलकुलेट किया 17.5 है, जबकि के एफ की वैल्यू 1.86 है, लिटरेचर में भी गिवन है ये वाटर की, तो ये हमें मिला है चेंज इन टेम्परेचर 32.6 है। अब हम जानते हैं कि प्योर वाटर का 0 है तो 0 माइनस 32.6, तो इसका मतलब है माइनस 32.6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब आप एथिलीन ग्लाइकोल को 52% वाटर का सोल्यूशन बनाएंगे तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, बल्कि वो माइनस 32.56 डिग्री पे फ्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम के बहुत सारी एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में मिलेंगी। ये साइंस ऑफ आइसक्रीम में, आइसक्रीम को बनाने में हम अक्सर साल्टी सोल्यूशन जो है या आइस के साथ हम साल्ट को ऐड करते हैं तो उससे डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो इससे हमें आइसक्रीम बनाने में हेल्पफुल होता है। इसी तरह आईसी रोड को हम जब साल्टिंग करते हैं तो उससे भी इसको मेल्ट करने में आसानी होती है। एंटी फ्रीज सोल्यूशन के तौर पर हम यूज करते हैं, कार रेडिएटर्स में भी हम एंटी फ्रीज कंपाउंड्स यूज करते हैं।
तो इसी तरह ओशियन वाटर में भी चूंकि ये मौजूद होता है तो ये इतने जल्दी फ्रीज नहीं होता। आइसक्रीम के लिए आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम बनाने के लिए हम वाटर सॉरी हम चूंकि उसके अंदर जो है वो आइस सिंपल आइस यूज करेंगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री तक जाएगा, लेकिन अगर आइस में साल्ट मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर -32.6 डिग्री तक, -30 माइनस में डिप्रेस हो जाएगा। माइनस में आपको ऑब्जर्व होगा, जिसकी वजह से आइसक्रीम बनाने में ये हेल्पफुल होगा। तो इस तरह ये एमल्सिफायर का काम भी करता है। जितने भी रोड्स हैं अगर वहां पे आइस पड़ी हो तो उसमें साल्ट ऐड किया जाए तो उससे ये होता है कि वो जल्दी मेल्ट होती है। जब हम साल्ट ऐड करते हैं तो सोल्यूशन ऑफ वाटर जो है डिसॉल्व करता है सॉल्ट को, और जिससे लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट देन प्योर वाटर, तो जिसकी वजह से वहां पे साल्ट को हटाने में हेल्पफुल होता है, सॉरी आइस को हटाने में हेल्पफुल होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो कोल्ड वेदर में हमारी सर्वाइवल है, बाज एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी बॉडी के अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं। वो एंटी फ्रीज प्रोटीन्स जो ये वन ऑफ द एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि सोल्यूशन जितनी अमाउंट में मौजूद होंगे उतना ही उनका ब्लड जो है वो फ्रीज नहीं होगा, और इस तरह उनको सर्वाइवल में हेल्पफुल होता है। इसी तरह कार रेडिएटर्स में हम एंटी फ्रीज कंपाउंड्स यूज करते हैं, तो ये भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये उसकी भी एग्जांपल है। इसी तरह जो है ये वाइन जो है ये खास किस्म की, यहाँ पे भी ये यूज होता है एंटी फ्रीज कंपाउंड। तो ओशियन वाटर जो है ये फ्रोजन नहीं होता, उसकी वजह इसके अंदर मौजूद मिनरल्स होते हैं, वो उसको फ्रीज नहीं होने देते इतने जल्दी। 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होता बल्कि उससे भी कम पे फ्रीज होता है, तो इसलिए इसको जल्दी फ्रीज नहीं होने देते। तो इसलिए इसीलिए चूंकि ओशन वाटर साल्टी होता है तो ये लो टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। सो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन। सो दिस इज द एंड ऑफ द lecture to depression of freezing point as one of the colligative property. Okay.